red ravishing rose. So I would like to dwell deeper on roses today. Yeah. रही है कि everything is protected. You are protected. And I think So, the day we body odor, you cannot be attracted to that person. You'll be repelled by that person. We all need our own space. जैसे हमारी एक एनर्जी बाउंड्री है जिसे हम ऑरा भी कहते हैं इन अनदर नेम. एक हमारी बॉडी की जो एनर्जी जुल्म किया ओ मैंने प्यार किया होय होय क्या जुल्म किया इन आंखों का रंग हो. so namaskar. I am your host for today's podcast, and I welcome Chitra Jha with me, a personal coach and my favorite person. So today, I was just drawn that I was thinking and wondering that what topic we'll discuss for today. And when I closed my eyes, I just saw a red ravishing rose. So I would like to dwell deeper on roses today. Yeah. So, You yourself are looking like a rose, Prakriti, with this dress. thank you. So beautiful. So, yes, the roses are red, violets are blue, Yes. and I You know, love there, you. yes, so sweet. Thank you so much. There is a district in Turkey, Halfeti. There, natural black colored roses also grow. I was wondering, wow, the beauty of nature. And each color has such a deep meaning. Yeah. Like, I think red is for love, romance, yellow is for friendship, white is for peace. So, would want you to, say something about that. Yeah, And black is for depth, for black is for that. absorption. So in Chandigarh's rose garden, they have all these roses, so many colors. It's so beautiful. So that's the only place I've seen black roses. Yeah. Wow, beautiful. I have not seen yet. But you know what happened yesterday? As we were thinking that we'll do this topic. You know what happened? I was seeing roses all around on my online screen and presences. I felt I'm being blessed by rose. And you know what happened? I also saw in my balcony. I have a rose plant. I saw a little bud flowering today. So I was just wondering that what cycles they play a role in nature. So anything you'd like to say? So what I would say is that you are budding into a rose, है ना? ये कली जब तलक फूल बन के खिले, इंतजार करो. So we all need patience. We all need, that beauty emerges gradually. अगर वो कली को आप ऐसे जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं खिल पाएगी. इतनी टाइटली वाउंड है वो बिखर जाएगी. ऐसे ही हम हैं, तो निखर रहे हैं, कभी बिखर भी रहे हैं. सो यही मुझे आपसे शेयर करना था। मैंने एक चीज नोटिस करी ऑफ लेट कि जब वो कली खिलनी शुरू होती है तो उससे पहले ग्रीन से कलर का एक उसमें ना एक कवरिंग सा आ जाता है, जैसे मुझे उसका नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा, बट इट काइंड ऑफ प्रोटेक्ट्स इट टिल इट स्लोली 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 इट टेक्स इट ओन स्वीट टाइम टू ओपन अप एंड फाइनली फ्लावर fully. And Yeah, then one day it has its own sweet life and then it goes away, falls off. So, yeah, that protection thing. So, yeah. yeah. And that's what each one of us is also seeking, not remembering कि अगर वो कली के लिए ऐसे ब्यूटीफुल सी प्रोटेक्शन दी है गॉड ने, तो हमारे लिए नहीं दी है क्या? वो हमें दिखाई दे रहा है. हमारा प्रोटेक्शन समटाइम्स हमें दिखाई नहीं दे रहा होता है. तो हम सोचते हैं कि शायद हमें तो ऐसे ही छोड़ दिया है, अनप्रोटेक्टेड. बट ये नेचर हमें यही बारी बारी बता रही है कि एवरीथिंग इज प्रोटेक्टेड. यू आर प्रोटेक्टेड. And I think So good. the day we fully recognize I am protected, we can relax. So good. So beautiful. Actually, this is the basic, I think. Till we don't feel safe from inside, till we don't feel that, connection within the self, or we don't feel that, we are being looked after by our divine mother and divine father. I feel we all struggle, you Yeah, know. yeah. Yeah.
So So the beauty of the and rose is, or anything in nature is, कि वो स्ट्रगल नहीं कर रहा है, वो बस रिलैक्स कर रहा है इन इट्स बीइंग, और अपने आप से जो उसका ब्लूप्रिंट है, अपने आप से अनफोल्ड हो रहा है, कली फूल बन so रही है। सो वंडरफुल। एंड जैसे हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कली फूल बन रही है, इसमें मैंने एक चीज और देखी कि जब ये फूल बनती है तो धीरे धीरे ऐसे लगता है कि विधाता ने एक ब्यूटीफुल से उसको लेयर से ड्रेसअप किया है, इतना समय लेके इतने ब्यूटीफुल लेयर्स होते हैं। जैसे मैंने देखे हमारे कई गाउन्स होते हैं लेयर्ड लाइक दैट, इतने ब्यूटीफुल लेयर्स। सो मैंने कहीं पढ़ा था कि इट इज लाइक अ फिब्रोनाची सीक्वेंस। तो उसके बारे में मैं कुछ जानना चाहूंगी आपसे। तो ऑल दीज वर्ड्स, फिबोनाची सीक्वेंस, कौन से 12th सेंचुरी में वो मैथमेटिशियन था इन इटली नेम्ड फिबोनाची, और उसने एक सीक्वेंस दी। जैसे हमारे एक मैथमेटिकल प्रोग्रेशन सीक्वेंस है, 0 1 2 3 4 5 6, फिर हम एक कहते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिससे सेल्स डिवाइड होते हैं। यू आर अ डॉक्टर, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, यू अंडरस्टैंड दैट, कि वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 64, तो ये मतलब एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ऐसे ही हमारे सेल्स डिवाइड होते हैं, हमारी बॉडी होती है। अब ये मैथमेटिशियन फिबोनाची ने एक और सीक्वेंस दे दी। उसने कहा कि जो पुराना है वो ऐड होते रहता है। तो 0 में 1, फिर 1 में 0 ऐड हुआ, अनदर 1, 1 में 1 ऐड हुआ, फिर 2, 2 में 1 ऐड हुआ तो 3, 3 में 2 ऐड हुआ तो 5, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो एंड उसने बोला कि ये जो सीक्वेंस से एक ग्राफ बनता है, दैट इज लाइक अ स्पाइरल, एंड एवरीथिंग अनफोल्ड्स इन दैट स्पाइरल, जहाँ पे क्या है कि पुराना ऐड होते रहता है। आज आपने एक बहुत ब्यूटीफुल जुपिटर की शेयरिंग की थी, जुपिटर की ग्लोरी करते हैं आप हमारे ग्रुप में। तो आपने एक बहुत ब्यूटीफुल शेयरिंग की कि वो अंगिरास का पुत्र है ना। तो मतलब कैसे वो लीनिएज उसमें ऐड होके आगे चल रही है, ऐसे ही हमारा है। जो भी हमारी लीनिएज ऐड हो रही है, हमारी टीचर्स की जो भी टीचिंग ऐड हो रही है, हमारे अपने एक्सपीरियंसेस ऐड हो रहे हैं, और अभी तो ये एआई का so much wisdom, collected knowledge, let's say, वो ऐड हो रहा है। तो ये सब ऐड होके वो फिबोनाची सीक्वेंस, दैट इज हाउ वो शुरू होता है 0 से, फिर 1 फिर 2 फिर 3, बट फिर वो ऐड होते होते मतलब इतना बड़ा बन जाता है, लाइक गैलेक्सीज बन जाते हैं। मतलब सो सोचो तो ब्यूटीफुल। अंदर तक कलेजे ठंड पै जाती है। मेरे को तो ऐसे झुरझुरी सी महसूस हो रही है ये सब सुन हम्म, के, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स लाइक कि हर एक मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है, चाहे दर्द भरा हो चाहे खुशी भरा हो, वो सब कुछ मेरे को एक कहीं ना कहीं मेरी जो भी मंजिल है वहां तक, मतलब वो रास्ता एक उसने क्रेव आउट कर दिया, ऐसा मुझे लग रहा है। मंजिल का तो पता नहीं है, लेकिन रास्ता इतना ब्यूटीफुल बना दिया ऐसे एक्सपीरियंसेस ने, ऐसा लगता है मुझे। और मुझे लग रहा है सो कि रास्ते के दोनों तरफ रोजेज हैं। सो ब्यूटीफुल। यस। जहाँ देखो वही रोज है। और मुझे यस। गुलकंद बड़ी अच्छी लगती है। ओ तो जो लवली। तो जो वो देसी रोज होता है ना, जी। मेरी माँ भी बनाती थी हमारे घर में। ऐसे हमारे एक ऐसे था, बोथ साइड्स ऑफ देयर वाज अ गार्डन, उसमें रोजेस थे, तो उसमें चीनी ओके। डाल के शी वुड कीप इट इन द अच्छा। सन, तो वो गुलकंद बन जाती थी। सो अभी तो बाजार जी। से खरीदते हैं हम, बट सो कितना ब्यूटीफुल है, लाइक यू सेड, वो रास्ता ऐसा, दोनों तरफ रोजेस, जब चाहे गुलकंद बना लो, जब चाहे उसको यू नो खुशबू ले लो, फ्रेग्रेंस ऑफ दैट रोज। यस। सो ब्यूटीफुल। और इससे मुझे ध्यान आया, मैं तो रोज डेली मुझे चाहिए होता है अपने नहाने के पानी में, रोज पेटल्स, ओह, नहीं तो मेरे रोज मेरे फेवरेट हैं जब मैं अपनी देवी को या अपने गॉड को अर्पित करना चाहती हूँ उन फूलों को। एंड देन जब वो ड्राई हो जाते हैं मुझे लगता है मुझे उनको यूज करना है, सो आई लव टी, तो मैं अपनी चाय में डाल देती हूँ यस, उसको। यस, सो नाइस। तो आई वांट टू ग्रहण, मतलब मुझे करना है उसको, ऐसे या लगता है कि एक एसेंस है हर एक नेचर में, जो भी चीजें भगवान ने बनाई हैं वो सब एक डिवाइन प्रिंसिपल के तौर पे ही हैं, और मुझे लगता है कि वो सब सेक्रेड और डिवाइन ही हैं।
या मतलब या उसी के अंदर ही है भगवान, वही भगवान है एक्चुअली। या तो उसको ऑनर करने का मन मेरा बहुत करता है। और मैंने एक चीज देखी है कि कहीं ना कहीं ये ना दिल को बहुत ठंडक देता है। मतलब मेरे को तो पर्सनली बहुत इससे ऐसा लगता है कि या कहीं ना कहीं हमारे अनाहत चक्र पे ये काम करता है। सो सो लाइक गुलकंद भी वो ठंड देती है अंदर में। तो रोज को भी जब देखते हैं तो कैसे एक अंदर में एक शीतलता देता है। आप मून की भी ग्लोरी कर रहे हो, वो भी एक शीतलता देता है। तो एंड रोज जैसे आपने बोला अनाहत है, वीनस से भी इसका कनेक्शन हो सकता है। आप किसी भी चीज से किसी भी चीज को जोड़ सकते हो। दैट इज द कितना ब्यूटी, सुंदर। क्योंकि सब कुछ ही सब कुछ से जुड़ा है। और जब सो जोड़ लेते ब्यूटीफुल। हैं ना, तो उसकी वैल्यू एक अलग हो जाती है। सही कहा। शेक्सपियर ने कहा कि रोज बाय एनी अदर नेम वुड इट स्टिल बी रोज। तो सो थिंग ट्रू। इज, नाम कुछ भी रख लो, क्वालिटीज तो उसकी वही रहने वाली हैं, है ना। मुझे लगता है नाम रखने से ना कहीं चित्रा हम उसको लिमिट कर देते हैं। जैसे हम बचपन से ही हमारे, हालांकि एजुकेशन सिस्टम यही रहा है, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीथिंग, जस्ट माय व्यू पॉइंट आई एम शेयरिंग, कि कहीं ना नाम रख के ठीक है, मैं समझ गई कि एक पहचान बन जाती है, हमें समझने में, डिस्टिंक्शन करने में फर्क पड़ता है। पर कहीं ना हम उसको एक लिमिट, वो खुद ही मतलब लिमिट, और नेचर को तो पता नहीं ना कि हम उसको रोज बुला रहे हैं, क्या बुला रहे हैं, जो भी बुला रहे हैं, तो हमने अपनी समझ के लिए उसे रख लिया। या सो एक ये नाम देना भी ना, मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है, अब धीरे धीरे समझ आ रही है कि उसको होने दो, उसको मतलब अपने आप को उपस्थित करने दो। मुझे ऐसा वर्ड आ रहा है, उपस्थिति। या दैट मैटर्स मोर देन द नेम इटसेल्फ, आई फील। या तो इसीलिए सो हमारे क्या है ना, सहस्त्र नाम दे देते हैं, इनफाइनाइट नेम। वाह। विष्णु सहस्त्रनामा, ललिता सहस्त्रनामा, मतलब सबके इनफाइनाइट नेम्स हैं। आपकी बेटी है वाह। एक, रोज जैसी। जी। अब आप उसको बिल्कुल। कुछ भी नाम देते हो ना, जैसे ही प्यार आता जी है जी। आपको नाम आपके मुंह से निकलता है ना। तो बिल्कुल वो बिल्कुल। उसका कोई भी एक स्कूल का नाम होगा, बट वो जी। नाम से वो लिमिटेड नहीं है, क्योंकि आप उसको रोज नए नए नाम दे रहे हो, नए नए नाम से पुकार रहे बिल्कुल हो। उसके फ्रेंड बिल्कुल। शायद कुछ और उसको नाम दे रहे कुछ होंगे। और बोलो जी, तो व्हाट बिल्कुल। आई रियली लाइक इज कि उसकी हर क्वालिटी, हर चीज की हर क्वालिटी, एंड नाउ दैट यू आर टॉकिंग अबाउट रोजेस, तो उसकी एक हर क्वालिटी का एक नाम दे सकते हो आप। तो आपने सो उसको फिर ब्यूटीफुल। लिमिट नहीं किया, अब आपने उसको और एक्सपैंड कर दिया। मुझे लगा स्तुति कर रहे हैं हम। स्तुति, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आप जब क्रिएशन की स्तुति करते हो, तो क्रिएटर जी। की स्तुति होती है। वाह। या कितना अच्छा है, कितना सुंदर है ना। तो यस। अभी आपने खुशबू की बात करी, तो खुशबू से मुझे ध्यान आया कि कैसे हम रोज को एक सिंबल ऑफ डिवाइन लव भी बोलते हैं, डिवाइन लॉन्गिंग, क्योंकि खुशबू दिखती नहीं है, दिख तो हमें उसका रंग, उसका शेप, उसके पैटर्न या उसकी ग्रोथ दिख रही है, साइकिल दिख रहा है, बट उसकी खुशबू, यू नो। या तो जो खुशबू होती है ना, वो रोज में तो होती ही है, बट हम में भी होती है ना। सो इट इज नॉट जस्ट कि जिसे हम बॉडी ओडर कहते हैं तो कि ओए होए इसको तो हटाओ, इसको तो वो करो, हमारे भी वो जो भी दैट फ्रेग्रेंस है हमारी बॉडी की, उसमें फिरोनॉम्स होते हैं, एंड वो यस। अट्रैक्ट करते हैं। दैट इज द केमिस्ट्री ऑफ आवर बॉडी। थ्रू दैट वी ट्रू। गेट अट्रैक्टेड। इफ यू डोंट लाइक somebody's body odor, you cannot be attracted to that person, you will be repelled by that person. फिर एक और सो तरह की ट्रू। फ्रेग्रेंस होती है जो हमारी क्वालिटीज की फ्रेग्रेंस होती है, कि किसी बंदे से आप बात करते हो, अंदर तक कैसे एक आपको सुगंधित जैसे उनकी प्रेजेंस होती है, बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटीज, देयर सॉफ्टनेस, देयर कंपैशन, देयर, तो काइंडनेस। सो इट इज लाइक हर बहुत तरीके से फ्रेग्रेंस आप महसूस कर सकते हो। तो मुझे लगता है ये भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है, जो जैसे हम देखते हैं एक नॉन वर्बल लैंग्वेजेस का ही हिस्सा लगता है मुझे, कि जब या बिना कहे सुने ही हम कुछ कुछ तो मतलब सूंघ लेते हैं कि हाँ हाँ, मतलब सूंघना ही ना, उससे मुझे नोज ध्यान आ रहा है। या सूंघ लेते हैं कि जैसे कि वो कोई अपना कुछ है कार्टून्स में होता है रेस्टोरेंट। ना, वो कार्टून्स में होता है ना कई बारी, कि वो जेरी या टॉम वो सूंघ के कहीं से खाने की खुशबू आ रही है, वो वहां पे पहुंच जाते हैं। तो यस, ऐसे ही हम भी शायद सूंघ के कहीं पहुंच जाते हैं।
आई थिंक डिपेंड्स ऑन कि किसकी जैसे सेंसेस कितनी डेवलप्ड है, किसी का नोज, किसी का आईज, किसी का ईयर्स, उस हिसाब से आई थिंक वी आर बीइंग ट्रेन्ड, या हम उसको और ट्यून इन भी कर सकते हैं, वी कैन आल्सो एनहांस दैट आल्सो, आई फील विद लाइक वी आर डूइंग विद आवर टूल्स इन आवर सेशंस एंड वर्क, सो या दैट आई फील। एंड उससे मुझे ध्यान आया कि फूल भी और कांटे भी, एकदम से ध्यान आया कांटों का, कितना मतलब जैसे हर वक्त रोज की मैंने महिमा हर जगह पढ़ी है, उसकी ग्लोरी पढ़ी है, बट थॉर्न्स की तो कोई बात ही नहीं करना चाहता। बट समहाउ आई फील कि जैसे प्रोटेक्टर बोल रहे हैं कि अप्रोच करो लेकिन रिस्पेक्ट से, या तो कुछ कहेंगे आप इसके बारे में? हाँ, जैसे आप कह रहे हो अप्रोच करो बट रिस्पेक्ट से, तो अप्रिशिएट मी बट थोड़ा दूर से। तो जैसे हम बाउंड्रीज की बात करते हैं, है ना, तो वो भी एक नेचुरल बाउंड्री दे दिया है। एंड एक्चुअली तो क्या है कि ये सब प्रोटेक्शन किससे प्रोटेक्शन है? ग्रेजिंग एनिमल से प्रोटेक्शन है एक्चुअली तो, कि वो ज्यादा नजदीक ना आए, उसको खा ना लें बिफोर इट हैज हैज हैड द चांस टू फुल्ली कम आउट इन इट्स हाईएस्ट पोटेंशियल। तो ऐसे ही हमारा है, जब तक हम पूरी तरह से अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में नहीं आए हैं, तो वी नीड बाउंड्रीज। जैसे छोटा पेड़ को बाउंड्री चाहिए होता है, और जैसे ये नेचुरली कांटों की एक बाउंड्री गॉड ने इनको दे दी है, तो ऐसे ही वी ऑल्सो नीड कि थोड़ा यू नो यू कैन नॉट कम टू नियर, और हम अलाउ करेंगे कि कौन कितना नजदीक आएगा। तो यू कैन नॉट क्रॉस बाउंड्रीज। सो तो थोड़ा सा और जानना चाहूंगी बाउंड्रीज के बारे में इन आवर डे टू डे लाइफ ऑल्सो, लाइक मैंने देखा है कि जैसे एक फेजेस आते हैं, जैसे कई बार हम बहुत रिजिड हो जाते हैं, हम चाहते हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, बट अगला यू वांट टू कनेक्ट एंड वांट टू अप्रोच यू यू नो सो थोड़ा सा बाउंड्रीज का थोड़ा प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में मैं चाहूंगी थोड़े आप टिप्स शेयर करें सबके लिए। तो पता क्या है, अब ये जो वर्ड्स है ना, ये पहले तो हमें पता ही नहीं। बाउंड्री पता था, बाउंड्री वॉल होती है घर की, हमें ये पता था। बट वो भी इसीलिए होती है, प्रोटेक्शन के लिए होती है, कि कोई ट्रेस पासर्स आर नॉट अलाउड, है ना। फिर समझ आए कि हमारी एक एनर्जी बाउंड्री होती है। जैसे कि आप अगर एक लिफ्ट में जाते हैं, and अगर लिफ्ट थोड़ी क्राउडेड है, आप थोड़ा सा सिमट जाते हैं अपने आप में, है ना। तो ऐसे ही कोई और लोग जब आपकी एनर्जी को इन्वेड करते हैं, तो आप सिमट जाते हैं, एंड अपने आप को छोटा कर लेते हैं, या काइंड ऑफ, कई लोग ज़्यादा चौड़े होते हैं, ज़्यादा जगह ले लेते हैं। आप, कई लोग होते हैं वो थोड़े से साइड में हो जाते हैं, कॉर्नर में हो जाते हैं, शाइन नहीं कर पाते हैं। तो सो इट इज़ लाइक वी ऑल नीड आवर ओन स्पेस। जैसे हमारी एक एनर्जी बाउंड्री है, जिसे हम ऑरा भी कहते हैं इन अनदर नेम, एक हमारी बॉडी की जो एनर्जी बाउंड्री है। तो उसमें हम कोई हमारा बारी बारी इन्वेट करता रहे, तो वो हमारे छोटी होती रहेगी, तो नेचुरली वी कैन नॉट ब्लूम। सो ये अभी हमें समझ आ रहा है इस बात को, कि कहाँ पे हम अपने आप को एक्सपैंडेड फील कर रहे हैं, कहाँ पे हम अपने आप को कॉन्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। एंड बोथ आर ओके, बोथ आर पार्ट ऑफ लाइफ, स्पंदन उसी से क्रिएट होता है। बट ये नहीं कि हमेशा ही हम अपने आप को ही छोटा करते रहें, छोटा करते रहें, तो समवेयर दैट बाउंड्री इज लाइक वो लक्ष्मण रेखा, कि इसके अंदर नहीं आ सकते आप। बट ये है कि बहुत ज्यादा भी अगर हम बाउंड्री वाले बन जाते हैं ना, तो वो फिर बाउंड्री कई बार अपना ही एक वो बन जाता है, अपना प्रिजन बन जाता है। तो बाउंड्रीज, फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज अकॉर्डिंग टू हमारी अपना कंफर्ट, एंड अ टाइम कम्स व्हेन वी आर फुल्ली ब्लूमिंग, देन वी आर बाउंड्रीलेस, फिर हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा। बट अभी तो एंड आई पड़ रहा थिंक है। वी आल्सो अट्रैक्ट द लाइकवाइज फ्रीक्वेंसीज, या कुछ कह रहे या थे? हनी, मैंने कहा अभी जब पढ़ रहा है, देन वी हैव टू बी क्लियर अबाउट बाउंड्रीज। जब नहीं पड़ेगा तब की तब देखी जाएगी, जब बाउंड्री लेस हो जाएंगे। अभी तो नहीं हुए हैं। सो वी ऑनर दैट। लाइक रोज का भी वो ऑनर कर रहा है कि भी उसमें कांटे हैं। हालांकि आज की डेट में तो हॉर्टिकल्चरिस्ट अलग तरह के रोजेज भी बनाते हैं जिसमें कांटे नहीं होते हैं, फॉर सेलिंग रोज स्टेम्स। तो या सो इट्स लाइक, अब जो देसी टाइप रोज है उसमें ज्यादा कांटे होते हैं, जो उसमें कल्चर्ड है कांटे। उसमें कम होते हैं। क्योंकि उसको उतनी सेफ्टी जो है, उसको अपने आप को नेचुरल प्रिडेटर से नहीं बचाना है। वो ऑलरेडी एक जगह में बैठा हुआ है, पेट डॉग जैसे, ऑलरेडी उसको सेफ स्पेस में बैठा हुआ है, तो उसमें ना भी हो कांटे तो इट्स ओके।
तो हमारी भी आई थिंक बाउंड्री लेस हम तभी बनेंगे जब हम एब्सोल्युटली सेफ फील करेंगे इन आवर सेल्स, इन आवर एनवायरनमेंट. सो या, सो गुड, लेट्स सी. या. सो गुड। और अभी आपने जैसे शेयर किया तो उससे मुझे एक ध्यान आया कि कैसे हम जैसे इंसान ये सब करते रहते हैं ना अपने उसके लिए कमर्शलाइजेशन, और क्योंकि रोज को एक प्रपोजल सिंबल, एक लव या उस तरह का देखा जाता है, रोमांटिक सिंबल। सो कैसे हम उसको, जैसे आपने अभी कहा कि कांटे के बिना बनाते हैं, अब हम कर सकते हैं, तो हम समझते हैं हम बहुत बड़े क्रिएटर्स हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कांटों का भी कोई ना कोई एक एसेंस है, तभी वो पार्ट ऑफ द डिजाइन है। तो जैसे हम अपनी बॉडी के साथ भी, जैसे कई लोग छेड़छाड़ करते हैं, मैंने ये देखा है, तो या. वो भूल जाते हैं कि जो डिजाइनर ने जो भी अंदर पैकिंग की हाँ. वो बट गड़बड़ हो जाएगी। सो आई वांट टू नो मोर, मतलब रियली, या तो दैट इज ट्रू. बट अगेन लाइक कि उनको जिस चीज के लिए दैट प्रोटेक्शन बनाई गई है, अब अगर उसको जरूरत ही नहीं है, उसको अलग तरीके से प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो सर्टेन थिंग्स देन बिकम ऑफ नो यूज. ऐसे ही धीरे धीरे हमारा भी, जैसे अब हम रात दिन एसी एनवायरनमेंट में मान लो रह रहे हैं, तो जो हमें क्रिएटर ने बनाया है हमारा बॉडी का सिस्टम, हाउ या टू टेम्परेचर को कैसे नेविगेट करें, तो या जो बहुत फॉर एसी मोर में रेगुलेट। रहता है उनको नेचुरली अब धीरे धीरे शायद हो सकता है कि नेक्स्ट में जो एवोल्यूशन हो, वो कहीं भी इनको तो जरूरत ही नहीं है, इन्होंने तो अपना टेम्परेचर, अपना ककून खुद ही बना लिया है. सो आई रियली डोंट नो, पर बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे कि सम ऑफ अस ऑनर नेचर एंड सम ऑफ अस से कि भी आई कैन क्रिएट माई ओन डोम, माई ओन हेवन. एंड इट्स ऑल राइट जो भी मुझे क्रिएटर ने दिया है कि नहीं दिया है, बट मैं खुद ही क्रिएटर हूँ. सो दो टू सो डिफरेंट काइंड वंडरफुल। ऑफ थॉट्स हैं, है ना. हमारा तो है कि आई उससे मुझे, स्टिल, या आई तो स्टिल बिलीव इन जो क्रिएटर ने दिया है वही परफेक्ट है. एंड मुझे कोई बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं करना है दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट. या. सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। वो ब्रह्मा एनर्जीज हम जैसे डिस्कस करते हैं क्रिएशन वाली, सो या. दैट वी कैन, दैट मैन इज ट्यूनिंग इनटू मोर ऑफन। ठीक है, या. वो भी अच्छा है, क्योंकि नई नई कितनी अच्छी इनोवेशन। आई एम सो थैंकफुल टू एआई इनफैक्ट यस. and our latest explorations with it, really enjoying it. So I just got a thought ki roses are so ancient, say I have found out that fossils, they have records have indicated that they are more than 13 million years old. So I या. was thinking about this ancient, this या. unique quality of being ancient. सो लाइक यू टॉक्ड अबाउट फिबोनाची सीक्वेंस कि वो एंशियंट से आज तक वो जो बना है, वो इट हैज बीन जस्ट ग्रोइंग. इट मे नॉट बी एग्जैक्टली द सेम. पता नहीं तब रोजेस कैसे लगते थे, अब कैसे हैं, क्योंकि उसमें इतना ह्यूमन इंटरवेंशन भी हुआ है. और अब एआई तो हमारे पोस्टर्स में इतने ब्यूटीफुल बड़े बड़े रोजेस बना देता है. So on Good. that note, the AI note, we will, Yeah, end today's conversation. But that doesn't mean that we will not yeah. have more conversations on Rose or on anything else. But yes, I would absolutely like to offer my gratitude, to AI and to internet and to, what we are studying, Rahu energy, that we are able to tune into these beautiful conversations and, express ourselves, delve deeper without thinking कि कहाँ लेके जाएगा आज. Yeah, Just explorer spirit, that adventurer spirit. I'm really loving it. absolutely. Yes, बिकॉज absolutely. परफेक्ट होना ना एक कैद है, जो हम अपने आप को उम्र कैद की सजा दे देते हैं, मैंने ऐसे देखा। So I really want to break free now of this cat Absolutely. and this attack Absolutely. today. And I'm really grateful to you for this, this Yeah. beautiful platform that we are all enjoying so much. So really, तो एक दो लाइन सुनाओ कोई रोज के ऊपर कोई गाना. yeah. सो मैंने अभी आज समय नहीं मिला, बट एक वो गाना मेरा एक फेवरेट है, शाम गुलाबी वाला, बट अभी लिरिक्स मेरे ध्यान में नहीं आ रहे। बट समहाउ गुलाब के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुलाब आते हैं ख्वाबों, मतलब ख्वाबों को संजोने। कितना मतलब एक कोमल सा एहसास मेरे दिल को जो छू जाए, तो मुझे ना अपनी दुनिया को बनाना है गुलाबी, रंगीन, वाह. अपनी सोच को भी और अपनी दुनिया को भी, जिसमें सब हम साथ रहें, कांटे भी रहें। मैं कांटों को भी वेलकम करना चाहती हूँ,
एंड आई ऑल्सो वेलकम गुलाब ऑल्सो इन एनी स्टेज, बडिंग स्टेज। मैंने देखा कुछ ना, गर्मी काफी हो गई थी, कुछ झुलस गए थे मेरे बालकनी में जो रोज प्लांट है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज और शेयर करूंगी, मैंने अभी नोटिस किया, कुछ कीड़ियां आ गई थी जब बहुत तेज गर्मी हो गई थी कुछ दिन पहले। द ants, they made their home in that rose pot plant. But I was so amazed with their intelligence. मतलब these little जो क्रिएशंस हैं भगवान की, they're so intelligent. तो हम लोग या क्यों अपने आप को करते रहते हैं हर वक्त डाउट कि नहीं कर पाएंगे या हमसे नहीं होगा। सो ये सारे मेरे विचार हैं जो अभी मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। सो या तो तुम्हारे गुलाबी से मुझे याद आया, हमारे जमाने का एक गाना होता था, ट्राई करती हूँ। बिल्कुल जी। मेरी आंखों का रंग हो गया गुलाबी हाँ हाँ हाँ। गुलाबी, हाय हाय रे दिल की हालत शराबी शराबी, ओ मैंने प्यार किया, होय होय क्या जुल्म किया, ओ मैंने प्यार किया, होय होय क्या जुल्म किया, इन आंखों का रंग हो गया गुलाबी वाह, गुलाबी। So on that note, thank you, थैंक यू सो brother. मच। Namaste. थैंक यू।